older or newer than that. Madam, please begin. We are live. Yes, sir. Yes. Good morning, all. In today's webinar session on time management, I, Unnati Shah, Assistant Professor in Electrical Department, Parul Polytechnic Institute, Parul University, Vadodara. I heartily welcome Jaimin Shah, sir, today's speaker. Jaimin Shah, sir, is an author and he is senior engineer at Xavier System. Just a little housekeeping before we get started. So without much wasting much time, we can start our session, sir. Over to you, sir. Okay. Thank you so much, ma'am, Unnati ma'am, to give this such a great opportunity over here to represent myself in front of lots of students. There are lots of people around here that we have in our life where we meet different type of people. Some people are very much successful in their life, some are struggling in their life, and some are already success, right? And some are like just working hard and hard to get success. But what actually the things that matter is the time. Time is an important part of our life where we cannot actually say that yes, we are working according to the time or we are not. हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जहां पर टाइम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, पर एक्चुअल में जब उस कंडीशन पर पहुंच जाते हैं उसके बाद हमारा टाइम सही चल रहा है कि नहीं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो सोचना कि हमारा टाइम सही चल रहा है कि नहीं। तो उस चीज के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज व्हाट, कि जहां पर हम किस हिसाब से काम करते हैं, किस पोजीशन के ऊपर काम करते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो आज हम लोग जो सेमिनार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट द टाइम, एंड दैट इज व्हाट द रीजन आई हैव गिवन द टाइटल द इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ। The most important, even I am an engineer that has been done in Parul Institute itself. I am 2011 pass out student of Parul University itself, right? So I know what actually the engineering is. How we people used to pass all the things, all the exams according to what we had, and that is what the engineering is. अब यहाँ पर जब भी हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, right? Each and every time life shows important stages, like we were kids, we were children, we were young, we were adult, now we are at a great or some position. Then what the stages are actually? When we born, we are small as a kid. When we grow, we get younger, we get adult, and so on. So everything depends on what time. We would not be able to say that at the age of 10 we will grow old, or at the age of 70 we will be a kid, right? So each and everything needs time. So this is what the engineering of life that we are going to start today. Now, as we know that whenever we start our life, there are basically two type of people. The one is well organized and the second is unorganized. The person who is well organized, the people who are well organized, I can say, are very much effective. The only reason is time. They work according to the what time says. Say the best example I can give is whenever we are having exams, right? At that time, what we will do? Are we going to play something? No, we will study, right? And as much as we'll study, we'll get good marks. So at the time of exams, we will study. At the time of playing, we will work hard to play. So according to what the situation, the time distributes. So the person who works according to the time will be well organized, and the person who would not be able to go according to the time will not be organized. Here on the slide, I have shown two things. There are two ropes over here. The first rope is well organized in a very proper way. The second rope is like untidy, that is not in a very proper way. So this two types of people are there in our life. One is very organized, who works according to the time, who will go according to the time, who do each and every work according to what the situations are. And the second will say whatever it will be, will do. हमारी लाइफ में भी हमेशा ऐसा होता है ना, एक बंदा ऐसा मिलता है कि जो हमेशा हर चीज में टाइम देखता है,
आज इतने बजे मुझे यहाँ पर जाना है, वो पहुंच जाएगा। और दूसरे बंदे ऐसे होते हैं, ठीक है यार देखा जाएगा, टाइम जो बोलता है वो देख लेंगे। बट नो, दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। जहां पर हम जब सोचते हैं कि हाँ ये चीज हो जाएगी, देख लेंगे, इस टाइम पर हो जाएगा, देख लेंगे, फिर उस टाइम पर अगर वो चीज नहीं होती है तो भी हमें प्रॉब्लम होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट one of the important tasks, that if we work according to what the time is, it will create the best impact in our life. Now, generally, lots of people have myths in it, like time management is about the common sense, that I did it in my school, it will manage my life properly. But no, if you are managing your time in school, it was according to the school timing. But as what the lifespan goes on and on, if you are into the college, you need some amount of more time to study, some amount of more time to your books, right? Now when you are going to the work, your book time will decrease and your work time will increase, right? Now बहुत सारे लोग हमें ऐसा कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जब भी करते हैं ना, हमारी लाइफ से मजा चला जाता है, एडवेंचर चला जाता है, राइट? तो जहां पर हम एकदम से अचानक से कुछ हमारे पास आ जाता है तो उस वक्त ज्यादा मजा आता है। बट नो, इट इज वेरी रॉन्ग। अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो, इट इज वेरी ग्रेट। से फॉर एन एग्जाम्पल, इफ योर बर्थडे इज टुडे एंड इफ यू आर गेटिंग द सरप्राइज ऑफ योर बर्थडे आफ्टर 4 or 5 days of your birthday, will you like it? Yes, you will like the surprise. But if someone will say that it is your birthday gift, you will say, oh no, how it is possible? You should have given it on my birthday. It would be more better. So this is what the time is. अब वही बंदा जो टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं रखता, वो आज हमें ऐसा सिखा रहा है कि यार बर्थडे के दिन मुझे वो गिफ्ट दे दी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो भाई आप भी टाइम के हिसाब से ही तो चल रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द टाइम। हमेशा हमें ऐसा लगता है that whenever we are working according to the time management, we are under the pressure. Oh my God, it's 4, it's 10, I have to start my presentation. Oh my God, it's 11, I have to stop my presentation. No, that will affect you. That will affect you only for starting 4 or 5 days when you start preparing your timetable. After 4 or 5 days, when you get habituated with the time and the time management or the calendar or the timetable, you will be able to have lowerize your pressure. आप अपना जो प्रेशर होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू कम कर सकते हो, न तो बढ़ा के, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास 24 घंटे है, इनफ टाइम कहाँ है टाइम मैनेज करने के लिए? If say for an example, I have prepared my timetable and according to my timetable, 4 to 5 is my study. But unfortunately, some unwanted guest appears at my home. Now what will I do? I am having only 24 hours. Now I have to attend those guests as well. So at that time, what we can do is we attend those guests, we greet them, we ask them to sit. After that, we'll tell them that as you are busy for some time, you will be in your room, but your relatives, your parents, your family members will greet them, will attend them in a very proper way. So this is what the time management is, and that will affect the more of your life. Now, every time there are lots of seminars that happen, there are lots of people who give lots and lots of speeches on the time management. Whenever we hear about the time management, we prepare one thing in our life. That is what, that we need a calendar. We will prepare a calendar that will tell us that at what time we have to do. Each and every time when we hear those speech, we will prepare that yes, this time I will do this, this time I will do this. We'll have lots of papers, lots of calendars with us, in a ready manner. That today I will do this, today I will do this. But unfortunately, there are lots of people who will prepare this, but only for 1 or 2 days. And after that, again, those time management things will be on the floor or it will move off. The reason that we don't believe in time. No. Each and every time, whenever we start preparing the time management things, when we are preparing the calendars, when we are preparing the books, the most important thing that we have to do is the scheduling. Whenever you schedule something, just be on it. This will help you. This will help you to the lifetime. This will bother only for 3 or 5 days, as I told earlier. जहां पर हमारे पास 4 या 5 दिन ऐसे होंगे जहां पर हमें बहुत टफ लगेगा, वो सेमिनार्स को, उस मैनेजमेंट को देखकर हमें बहुत टफ लगेगा। बट वो 4 या 5 दिन के बाद यही चीज हमें बहुत इजी लगेगी कि हाँ चलो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है।
अभी फिलहाल क्या होगा, 1 घंटे का लेक्चर है ना, चलो भर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पता चला कि वो लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है, तो प्रॉब्लम, यार बहुत कंटाला आ रहा है, राइट। बट अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ आएगा पता है? 1 घंटे का लेक्चर है, अगर वो 3 घंटे के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है ना, तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमने हमारा 4 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए दिया है, तो 1 घंटे की जगह 4 घंटे भी पढ़ने बैठेंगे, लेक्चर्स होंगे, तो भी हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्केड्यूलिंग। तो अगर हम लोग सही तरीके से स्केड्यूल करते हैं हमारी सारी चीजें, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम मिलता है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट दैट टफ। हम क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ स्केड्यूल करना है। आपको क्या, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं ना, अगर पार्टी में जाना होता है तो 9 बजे की जगह हम लोग 8:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो वो 9 बजे का स्केड्यूल क्यों 8:30 बजे पहुंच गया, राइट। तो उसी हिसाब से हमारे लाइफ की सारी एक्टिविटीज हमें इसी तरह से स्केड्यूल करनी है कि हाँ, ये 9 बजे ये काम करना है, 10 बजे ये काम करना है, दैट्स इट, राइट। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट टाइम वेयर वी कैन गो फॉर द कैलेंडर। तो आज से कैलेंडर प्रिपेयर कर दो, पर वो कैलेंडर कैसे प्रिपेयर करना है, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, इट इज फॉर द लाइफ टाइम। इवन वी पीपल यूज टू हैव द कैलेंडर्स एज वेल फॉर आवर लाइफ, कि जहां पर हमें खुद को पता है कि इस स्टेज पर मान लो कि 25 से 28 साल की एज है, जहां पर हम पढ़ लिख कर अच्छे खासे से हो गए, तो फैमिली मेंबर्स हमें बोलेंगे कि भाई चलो अब पढ़ लिया आपने, यू हैव टू थिंक फॉर योर फैमिलीज एंड ऑल, राइट। अब 12 से लेकर 20 साल में आप 12th स्टैंडर्ड करोगे, आपकी कॉलेजेस करोगे, ठीक है। तो उस वक्त आपके पेरेंट्स आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई चलो काम धंधे पर लग जाओ, राइट। तो उस वक्त हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ये सारे कैलेंडर्स आपको हमेशा आपकी लाइफ में आगे लेकर जाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि टाइम स्ट्रेस बढ़ाता है, टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देता है, हमें ये करवाता है, हमारा टाइम बिगाड़ता है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टाइम बिगाड़ने का काम करता है? नहीं, टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी का काम करता है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आज एक्चुअली अभी मेरा 10 बजे का सेमिनार था, मैं 9:30 बजे से प्रिपेयर रहकर बैठा था कि मेरा 10 बजे का सेमिनार है, 10 बजे का सेमिनार है। से फॉर एन एग्जाम्पल, ये 10 बजे लाइट चली जाती है, व्हाट आई विल डू इज, विल बी इन स्ट्रेस? नहीं, मैं 9:30 बजे से प्रिपेयर था कि मेरा 10 बजे का सेमिनार है। दैट मीन्स अगर लाइट भी चली जाती है तो आई विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई फोन से मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं कोई और जगह पर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट था कि मैं अपने हिसाब से उस चीज को मैनेज कर सकता हूँ, राइट। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट अगर मैं करता हूँ तो वो मेरा स्ट्रेस कम करने का काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मुझे सेल्फ कंटेंट करता है, मुझे लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 10 से 11 का जो मेरा आज का सेमिनार है, तो मैंने क्या किया, 10 से 11 का स्लॉट मैंने अपना फ्री कर दिया। अब मुझे पारुल यूनिवर्सिटी से बोला गया था कि सर आज के दिन मतलब 8 तारीख के दिन 10 से 11 का आपका सेमिनार है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो मैंने क्या किया, 10 से 11 का जो मेरा दूसरा हर रोज का स्लॉट होता है उसको मैंने मैनेज कर दिया। अब मान लो कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैंने ये नहीं किया होता, तो आज मेरा यहाँ पर 10 से 11 का सेमिनार भी होता और दूसरी जगह जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स है वो भी होते। तो मैंने क्या किया, शेड्यूलिंग किया अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। मैंने 10 से 11 का मेरा रेगुलर स्लॉट चेंज करके मैंने 10 से 11 पारुल यूनिवर्सिटी को दे दिया, मेरे स्टूडेंट्स को दे दिया, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि एक्चुअल में मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे हो सकता है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, सेल्फ कन्फाइड हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता है कि मुझे 10 से 11 में यही चीज करनी है, तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, सेल्फ कंटेंट हो जाऊंगा, जिसकी वजह से आज जो 10 से 11 के बीच में मुझे जो कंटेंट मेरे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को देना है, वो गोल के हिसाब से, मतलब 11 बजे जब मैं ये सेशन खत्म करूंगा ना, तब मेरे सारे स्टूडेंट्स को एक चीज के बारे में श्योर पता चल जाएगा कि उनके लाइफ के गोल को अगर हासिल करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क। सो दिस इज व्हाट द ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन आवर लाइफ। Now, we all know that in a week there are 7 days. That means 168 hours. उन 168 hours को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ हमेशा के लिए। That is, one is urgent, second is not urgent. जो चीज अर्जेंट है, अब इट इज ऑब्वियस, किसी बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत है,
उसको मैं पहले ऑक्सीजन दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा कि भाई 10 बजे का ऑक्सीजन देने का टाइम है तो मैं उसको 10 बजे ही ऑक्सीजन दूं। नो, व्हाट आई विल डू इज, ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, इज एन अर्जेंट, राइट? तो मैं व्हाट आई विल डू इज, आई विल गिव द ऑक्सीजन एट फर्स्ट मोमेंट. At that time, whatever the other things I am having in my schedule will postpone it for some time. Till what? The oxygen is to be given. So I will divide my 168 hours in two things. The first is urgent and second is not urgent. Say for an example, if I'm talking to someone and if it is not urgent, I will postpone it. If in an exam, I'm giving an exam right now, that exam is urgent. And at that time, one of my friends comes to my place that, Jaimin sir, can you just guide me out? At that time, what I will say is, I'm so sorry, buddy, that I have to give my exam right now and it is very urgent. So what I will do is, I will prefer my urgency at that time and I will tell him to wait for some time so that both the things, my urgency and my non-urgency will get managed at both the levels. So this is what the urgency and non-urgency. That means non-urgencies will be in the queue of a plan and urgency will be right now itself. मतलब मैं क्या करूंगा, जो अर्जेंट चीज है वो मैं तुरंत कर दूंगा, जो नॉन अर्जेंसी है उसको मैं प्लान के हिसाब से जाने दूंगा कि ठीक है, इट विल बी इनटू माय कंफर्ट जोन, इट विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट कैन बी डन, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम इन नीड, राइट? से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम इन नीड ऑफ वाटर राइट नाउ itself and if it is not urgent, then I will let go. But if it is very urgent, say for an example, I'm running continuously for 7 and 8 hours and now I'm in need, I will have to take the water. That is urgency. But just for 2-3 minutes I'm running and I need water, I can stay calm and will make it off. Then I will say, okay, fine, will not be in need of that water right now, we'll take it after some time. So this is what the main thing. That means in short और simple तरीके से अगर मैं बताता हूँ, तो जो हमारी habits है वो नॉन अर्जेंट चीजों में आती है, जिसको हम प्लान के हिसाब से कर सकते हैं, जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमारी अर्जेंसी में है, तो हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. सो दिस आर व्हाट 168 आवर्स ऑफ आवर वीक, जिसको हमें डिवाइड करना है अर्जेंसी एंड नॉन अर्जेंसी के हिसाब से. ना अगर टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले क्या है, दैट इज आवर गोल्स. हमारे गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट life process. Say for an example, my goal is to be one of the best speaker, right? So for that I have to do lots of things. I have to give lots of speeches, I have to manage my time, I have to give the time, but before that I have to listen to everyone, and that listening will manage my time as well. The most irresponsible things that we have is expectations, right? What we do is expect from everyone. No, we don't have to expect anything. We just have to work on what we are having. Just remember one thing, that none of them are perfect in their life. If I'm over here right now, I'm speaking in front of you, that doesn't mean that I'm perfect in my life. No, there are lots of problems that occurs in my life. But after that, if I'm neglecting those problems for the betterment of the people, for the betterment of my life, I am one of the best. But for that, what I have to do is again manage my time. Say for an example, I'm having lots of problem in my life. Now instead of giving you how to manage the time, I will start discussing my problems. I am not the best. Right now, I'm with my happy face. I'm at my best to make you aware what actually time management is. That is what I am perfect at right now, right? Just what we have to do is we have to make the goal. We have to work according to the expectation of the goal. Third is the most important thing, that is scheduling. That is what I told earlier as well. हमें सबसे important चीज करनी है वो है schedule करना. हमें सारी चीजें schedule के हिसाब से चलनी है. And the second is revisit and revise your plan. जो भी प्लान हम लोग बनाते हैं उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, उसको कंटिन्यूसली रिविजिट करते रहो, ताकि वो जो हमारे गोल्स एंड आवर प्लान वुड नॉट गो अवे फ्रॉम अस, बिकॉज द गोल्स एंड द प्लान्स आर इम्पोर्टेंट प्रोसीजर ऑफ आवर लाइफ. इफ दैट इज गॉन, वी आर नथिंग. सो गोल्स,
उसको रिविजिट किया करो, उसको रिवाइज करते रहो अकॉर्डिंग टू व्हाट द शेड्यूल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस दैट यू आर हैविंग फॉर योर गोल्स एंड योर एम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर लाइफ. The worst part that we have is we do not revisit. हम लोग हमारे वैल्यूज को जानते हैं, but unfortunately we do not rebound with our values. We do not revisit our values. When we know that we are going into this direction, right? Say for an example, from Vadodara to Ahmedabad, if we are going to the expressway, do we move out at Anand or do we move out at Nadiyad? No. Why? Because we know that we have to go to Ahmedabad. Now, n numbers of time, we know that from Vadodara to Ahmedabad, if we are going on to the expressway, we will reach in 93 kilometers. From Vadodara to Ahmedabad, it is 93 kilometers. Still, after every logs or after every kilometer note, we will see the kilometers. That how many kilometers are left, how many kilometers are left. At that time, when we know that we are revisiting, reviewing those kilometers, then why can't we see our own path, our own plans, our own directions of life? हम लोग क्या करते हैं, हर एक जगह पर रिविजिट करते हैं. बहुत सारी बार सयाजी गार्डन हमने देखा, गांधीनगर गुरु देखा, आजवा लेक देखा, पर उसको भी हर बार जाते हैं ना. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए 2 बार 3 बार जितनी बार लोग जाएंगे हम जाएंगे. ठीक है, तो हमारी लाइफ के भी डायरेक्शन को हम 2-3 बार देख सकते हैं ना. क्यों? क्योंकि वो तो हमारी खुद की लाइफ है. अब उसी को नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, राइट? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एनर्जी. नाउ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट ओनली द रीजन इज that when we are scheduling our time, when we are managing our time, when we are making some plans, it is very much necessary that each and everything has those energy. Now, the most important thing is what those energy is being oriented with the things that we are doing in our life. Say for an example, that we have prepared something for 2 days back, or after 2 days we are preparing something. I am having my project after 2 days. For that preparation of that project, I need 2 things. One is time and second is energy. This time and energy are responsible for each and everything. If I'm not having energy, I would not be able to prepare anything. If I'm not having time, I would not be able to prepare anything. So this 2, that is time and energy, are the important factors of our life. The most important is energy in that. We have to value this energy. We have to fractionalize this energy in what different things. I know that I am having my project 2 days after. I have to prepare everything. Everything is left for 2 days, right? So my whole energy will be into it. Right now, I'm giving this seminar, right? But after 2 days, if I'm having any project, my mind will be over there. My energy will be over there. Only what is I'm speaking over there and here and here. So this is what one of the worst part, where I have to manage the time, the energy as well. And the last and the main thing is, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको एग्जामिन करें. हमारे हिसाब से हम लगता है कि ये सही है, पर 3 लोगों को पूछो क्या ये सही है, क्या ये सही है. अब वो जब हम पूछते हैं वो भी टाइम के हिसाब से, राइट? अब से फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन से आई एम इन द हॉस्पिटल, नाउ इट इज इन अ वेरी सीरियस मैटर, right? It is at the critical stage. Now my parents, my mom or dad will ask for the suggestion of 2-3 people that yes, what should I do, what should I do, and in that I am no more. So at that time I should not take any suggestions from that time. उस वक्त जो भी सही है, जो लगता है कि एक important चीज है, वो हमें करनी पड़ेगी. हाँ, if it is normal, say for an example, only one of my leg is broken, the doctor is saying that you will have 2 legs to charge, राइट? तो उस वक्त मुझे 2 या 3 सजेशन की जरूरत है. तो उस वक्त हमें हमारे डिसीजंस को मैनेज करना पड़ेगा, हमें एग्जामिन करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द रिविजिट ऑफ आवर वैल्यूज. नाउ हमें हमारे गोल्स को, व्हाट इंपॉर्टेंट इज दैट वी नो, राइट? हमें ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग राइट नाउ टू मी आर वेरी मच मैच्योर. तो वो मैच्योरिटी के हिसाब से हमें सब कुछ पता होता है कि हमें ये करना है, राइट? अभी मान लो कि मैं यहाँ पर सेमिनार दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने अभी बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, बट से फॉर एन एग्जांपल मेरे सामने अगर कोई बंदा गिर गया तो मुझे यहाँ पर इस चीज को पॉज करके जो गिरा हुआ बंदा है उसको मुझे उठाना पड़ेगा, वरना उसको और प्रॉब्लम होगा. तो व्हाट एक्चुअली थिंग्स मैटर इज द गोल्स.
वो गोल को हम कैसे स्टार्ट करें, किस हिसाब से हमें करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें हमारी लाइफ के लिए क्या करना है, हम हमारी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उसको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा। जैसे ही वो चीज हार्ड हो जाती है, कॉन्क्रीट बन जाती है, दैट मीन्स हमारा गोल एक बार बन जाता है, उसके बाद उस गोल को हमें लॉन्ग टर्म पर लेकर जाना। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है चलो आज हमें डॉक्टर बनना है, चलो छोड़ दिया, 2-3 दिन तक हमने पढ़ लिया, नहीं मजा आ रहा है यार, अब इंजीनियर बनना है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक इंजीनियरिंग पढ़ लिया, उसके बाद नहीं यार छोड़, हमें बिजनेस स्टार्टअप करना है। अरे भाई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, राइट। सो दिस इज व्हाट लॉन्ग टर्म। एक बार गोल डिसाइड कर दिया कि इंजीनियर बनना है, दैट मीन्स हमें उस चीज पर बैठ जाना, फिर हर थोड़े टाइम के बाद चेंज नहीं करना। तो पहले कॉन्क्रीट बन जाओ कि क्या गोल करना है। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, राइट। और उसके लिए जो भी सपोर्ट की जरूरत है, जहां से भी सपोर्ट मिलता है, उस सपोर्ट को हम ले लेना। उसके बाद डेडलाइन फिक्स कर दो। अब इंजीनियर बनने के लिए 4 साल जरूरी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, अगर डिप्लोमा है तो 3 ईयर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे डेडलाइन को फिक्स कर दो, राइट। अगर इंजीनियर बनना है, कॉलेज इसमें बोला है कि आप लाइफ टाइम के लिए पढ़ते रहो, इंजीनियरिंग होता रहेगा, पॉसिबल है? नहीं, डिग्री तो चाहिए ना। तो 4 साल के बाद जब कन्वोकेशन होता है, डिग्री हाथ में आती है, तो आपने एक गोल अचीव कर लिया। अब वो गोल जैसे ही अचीव कर लिया, हम तो सेल्फ कन्फाइड है, कभी भी सेटिस्फेक्शन में नहीं मानेंगे। हम क्या बोले, नहीं यार डिग्री हासिल कर ली, अब मास्टर्स देखते हैं, तो मास्टर्स पे लग जाएंगे। तो गोल क्या है आपका, मास्टर्स का। जैसे ही मास्टर्स कर दिया, नहीं भाई पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो करना है, पीएचडी कर लेते, डॉक्टरेट कर लेते। तो ये सारी चीजों के हिसाब से डेडलाइन फिक्स करनी है। अगर डिग्रीज वालों ने कॉलेजेस में 4 साल की डिग्री की जगह पर अनलिमिटेड कर दिया होता, तो क्या गोल आपका हासिल होता? नहीं। तो उन सारे गोल्स को कॉन्क्रीट करो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो, उसको डेडलाइन दे दो। वो डेडलाइन के हिसाब से आप अपना करियर चूज करो। जैसे ही आपका डेडलाइन आ जाता है, आपको गोल हासिल हो जाता है, तो दैट इज व्हाट यू रियलाइज दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल, और उसको आगे एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करना मतलब उसी गोल को एक्सटेंड नहीं करना है, दूसरी किसी चीज को, दूसरे किसी एम को आप गोल बनाकर उसको आगे लेकर चले जाओ ना। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर गोल? is today, is right now. The current situation is the best time where you can achieve your goal, where you can start preparing for your goal. This is what one of the important part. Now, whenever say what are the priorities, whenever we think that what could be the priority, सर अभी आप सेमिनार दे रहे हो, वो आपकी प्रायोरिटी है? नहीं। अगर सामने कोई बंदा गिर रहा है, तो दैट विल बी माय प्रायोरिटी, राइट। तो जो चीज आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, सामने वाला बंदा अगर आपको बताता है दैट यस दिस इज योर प्रायोरिटी, नो, दैट कुड बी हिज प्रायोरिटी, नॉट माइन। व्हाट कैन बी द प्रायोरिटी इज व्हाट अकॉर्डिंग टू आई थिंक इज इंपॉर्टेंट इज माय प्रायोरिटी। सो द फर्स्ट इज फ्रॉम दोज गोल्स, क्योंकि हर एक के एक गोल नहीं होते। मुझे आज इंजीनियर बनना है, मुझे आज ऑथर बनना है, अच्छा स्पीकर भी बनना है, ये तीनों मेरे गोल है। बट फ्रॉम दैट व्हाट कुड बी द प्रायोरिटी, right? For that I would be what I want to be the engineer. If I would be a good engineer, I will have enough of my name, and through that name I will be an author, a well-known author and a great speaker. Otherwise would not be able to do anything. So everything should be what an important, but from that important, create it first. Say for an example, in my life my motto is to be an author. I want to be the speaker as well, I want to be the engineer as well, but my goal is what, to be the author. So I will give the first preference to be an author. So in my list, my first point will be to be the author, then to be the speaker, and then to be an engineer, right? So once that priority is done, it's fixed, author, speaker and engineer. Now what I will do is, will put into it, will put my efforts into it, will give my 100% to it. First, I will be the author. Once the author is done, I want it to be what is the speaker. I will work on it. According to what I will plan my everything. And that is what the time management for each and every person. Now, the most important is scheduling. We are very tough in scheduling, right? Whenever we are having problems with scheduling, the birthdays,
We will schedule our birthday months ago. That on this day, I will prepare this, I will do this, I will do that, I will do this, I will do that. But on the day of birthday, everything gets messed up. So have to schedule, right? So now, say for an example, we are working according to the semester systems. So what you can do is you will prepare the semester calendar, right? What is important, what is not important. Classes are important or labs are important or both are important, राइट सो हमें क्या करना है, हमें क्लासेस के टाइम को शेड्यूल करना है, हमारे लैब्स के टाइम को शेड्यूल करना है, वो भी किस हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब मुझे पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है या सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम है, तो सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम में मैं फर्स्ट सेमेस्टर का तो पढ़ाई नहीं करूंगा। हाँ, पढ़ाई करूंगा अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ अंदर आने वाला है या उसमें से कुछ टीचर्स ने बोला कि ये चीज होने वाली है, उसको मैं क्या करूंगा कि मेरी एग्जाम्स के डेट के हिसाब से उसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा, उसको शेड्यूल करूंगा और उसी हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊंगा, राइट। उसके बाद मैं अपने एग्जाम्स, अपने पेपर्स के हिसाब से आगे बढ़ूंगा, स्टडी टाइम को देखूंगा और मेरे जो सैटरडे, दैट मींस व्हाटएवर द फ्री टाइम आई एम हैविंग, विल मैनेज दोस टाइम फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, आज सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे का कॉलेज है, रेडी हो जाते हैं, फटाफट वैन में, व्हीकल्स में भागो। No, everything is very much important. If your college is of 8 a.m. in the morning, you should wake up at 4:30 in the morning. Wake up early in the morning, do some yogasanas, do some preparation, whatever you are going to do in your college, right? Give some time, at least 10 minutes for your family. Ask your family to get early in the morning with you, right? Have some good breakfast, healthy breakfast we can have it. So from 4:30 to 7 or 7:30 or till you reach your college, we have to manage those things, right? Just prepare yourself in such a way that you will be at your best in your college. One thing I can give a surety that if you start waking up at 4:30 in the morning, giving yourself good time, giving your family a good time, I'm sure that from 8 to whatever time you are there in the college, you will be at your best, your energy will be best, your time will be best. और एक चीज बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आप अच्छे से अपने आप खुद के लिए टाइम बिताते हो, तो जो आपकी 8 बजे के बाद की कॉलेज में आप जो भी कुछ पढ़ते हो, वो ही आपका सबसे बेस्ट टाइम है। घर पर आकर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉलेज में ही अच्छे से फ्रेश मूड से पढ़ पाओगे। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, कॉलेज से 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं, फिर आधे नींद में होते हैं, भूख लगी होती है, इधर उधर ध्यान होता है, तब कॉलेज में नहीं पढ़ पाते और इसी वजह से घर पर आकर मेहनत करनी पड़ती है, शायद फेल हो जाते हैं, शायद पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। बट मेरी चीज हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, 4:30 बजे अगर जो बंदा उठ जाता है ना, खुद के लिए टाइम दे सकता है, वो कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसको पढ़ाई में सबसे अच्छे मार्क्स भी आएंगे, उसको घर पर आकर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट द शेड्यूलिंग इज, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द टाइम। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे। उस टाइम को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? बीच में कोई फ्रेंड आ जाता है, उसके पास चले जाते हैं, मम्मी खाना खाने के लिए बुला जाती देती है तो 1 घंटा उसमें चला जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, मम्मी बोलती है बेटा दूध लाना है, दही लाना है, या कोई बोलता है चलो ये ले आओ वो ले आओ, तो हम तुरंत चले जाते हैं। बट कभी क्रिकेट खेलने के टाइम पर मम्मी बुलाती जाओ बेटा दूध लेकर आओ, दही लेकर आओ, तो जाते हो, तब क्या बोलते हो, मम्मी 2-5 मिनट रुक जाओ ना, बैटिंग खत्म कर दो, मम्मी 2-5 मिनट रुक जाओ ना, बॉलिंग खत्म कर दो, राइट। पर पढ़ाई के टाइम पर ये क्यों नहीं होता है? पढ़ाई के टाइम पर कभी नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अगर टाइम के हिसाब से मैनेज करते हैं ना, तो उस टाइम पर भी आप मम्मी को यही बोलोगे, मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, मेरा सम बाकी है या ये इतना सा प्रोजेक्ट बाकी है वो खत्म कर दो, उसके बाद में आपका दूध दही जो भी लाने वो मैं ले आऊंगा। तो ये चीज हमें करना है, हमारे स्पेयर टाइम को हमें रिव्यू करना है। अगर आधा घंटा स्पेयर टाइम है हमारे पास, तो उसमें से 15 मिनट हम एक यूजेबल पार्ट में चेंज कर दे और 15 मिनट को ही स्पेयर में कर दे। हर रोज पढ़ने की हैबिट डालनी है, हर रोज टाइम मैनेज करना है। हम हमारे स्टडी टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, जितना देखो, हमेशा हर एक लोग, आज मैं भी इस जगह पर पहुंचा हूं टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही पहुंचा हूं। मेरे पास भी 24 घंटे ही है, जितना आप पढ़ते हो उतना ही मैं पढ़ता हूँ, शायद उससे कम पढ़ता हूँ, पर मैं वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ता हूँ।
2 घंटे अगर मुझे पढ़ना है तो मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा। आज मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है डॉक्टरेट का, राइट। पर मैं भी किस हिसाब से करूंगा कि हाँ 2 घंटे पढ़ना है तो मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइंड 2 घंटे तक ही मुझे स्पेयर कर सकता है, उससे ज्यादा अगर पढ़ता हूँ तो बाउंस जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज विल रीड फॉर 2 आवर्स, will take 10 minutes gap, then again we'll start reading. So this is what one of the important part. Whatever time you are having extra, leave it at the end. वो एक्स्ट्रा टाइम आपको 2 चीज में यूज करना है। एक, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, या तो अपनी फैमिली के साथ। फैमिली इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ योर लाइफ। अगर फैमिली आपके साथ है ना तो आपका टाइम पूरा आपका है और कोई आपसे कुछ नहीं कर सकता। फैमिली, दैट इज व्हाट आई से, family is the medicine of your life. If you are with your family, you will not in need of any type of medicine for your life. आप लाइफ बहुत अच्छे से बिताओगे, राइट ना। कैलेंडर्स, हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। Each and everyone has their own reliability, have their own perspective, but उस पर्सपेक्टिव में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, टू डू लिस्ट। हमें वो लिस्ट बनाना है जो हमें करना है, वो नहीं जो हमें छोड़ देना है, राइट। से फॉर एन एग्जांपल, व्हेन वी आर हैविंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ बट स्टिल वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज द हैप्पीनेस। तो हमारे टू डू लिस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, वो सबसे ऊपर रखना। रिजल्ट हमेशा खुशी देते हैं ना, राइट। फर्स्ट रैंक लेकर आए, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को कहा था कि मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊं ना लेकर आऊं उससे कोई चिंता नहीं, मैं पास होकर आऊंगा उसी में खुश हूँ, राइट। तो मेरी टू डू लिस्ट में हमेशा क्या था पता है? पास होना। मेरी टू डू लिस्ट में कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट रैंक लेकर आ जाऊं, राइट। यहाँ पर जो लोग अभी पारुल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री में, यू माइट बी नोइंग अबाउट मनीष सर, मनीष पंड्या सर, राइट। ही माइट बी देयर इन द एडमिन सेल राइट नाउ, आस्क हिम। वो हमेशा मुझे डांटते रहते थे कि जयमीन तू क्या करेगा अपनी लाइफ में, बट ये सेमिनार जब वो सुनेंगे ना तो वो खुद खुश हो जाएंगे कि एक बंदा जो शायद बहुत कम नंबर लेकर आता था, एक बंदा जो सिर्फ पास होता था, वो आज एक स्पीकर के तौर पर पारुल यूनिवर्सिटी में ही स्पीच दे रहा है, जो आज एक खुद एक बेस्ट वेल नोन ऑथर है, जो एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एंटर्ड है, राइट। सो दिस इज व्हाट माय टू डू लिस्ट। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो चीज मुझे करनी है ना वो मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर रखता हूँ, राइट। तो उससे फायदा क्या होता है, वो चीज सबसे पहले खत्म हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हम लोग मैरिजेस में जाते हैं, व्हेनेवर वी गो इन अ मैरिज, क्या हम वो जो लिफाफा होता है, जो कवर होता है, क्या वो जाकर देते हैं सबसे पहले? नहीं। मैरिजेस में जाने के लिए हमारे सबसे पहले टू डू लिस्ट में क्या होता है पता है? खाने में क्या है, डेजर्ट है कि नहीं, उसमें लाइव काउंटर्स कितने, वो सारी चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरह इन आवर लाइफ टू डू लिस्ट इज द इम्पोर्टेंट। लाइफ में भी वही सारी चीजें करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि स्पेयर है उसको नीचे के टाइम पर रखो, वो करो बट वो नीचे रखो, राइट। अब हमारे पास ईयरली कैलेंडर है जिसको हमें प्रिपेयर करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, राइट। सो दिस कैलेंडर शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि जहां पर हमें वो चीज हैक्टिक नहीं लगती है, जहां पर सिंपल है। वी ऑल नो दैट टाइम इज नथिंग। हमारे पास कल क्या होने वाला, इवन आफ्टर दिस सेकेंड आई डोंट नो, बट एटलीस्ट वो प्रिपेयर करके रखेंगे तो इसके बाद के सेकेंड में हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज इट वुड नॉट थिंक, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डेली कैलेंडर, दैट इज फ्रॉम टुडे। आज एक दिन के लिए आज का कैलेंडर प्रिपेयर कर लो। एक दिन के लिए आज लगता है कि हाँ आज ठीक से काम नहीं हुआ है तो 2 दिन का कर दो, 3 दिन का, उस हिसाब से 1 हफ्ते के लिए पहले टाइम टेबल बना दो कि मुझे 1 हफ्ते में क्या करना है। जब लगता है कि हाँ आप 1 हफ्ते के लिए उस टाइम टेबल को अच्छे से या थोड़े ठीक से प्रिपेयर कर सकते हो तो 2 वीक का बना दो, 3 वीक का बना दो, उस हिसाब से 1 महीने का बना दो। 1 महीने के बाद 1 साल के हिसाब से ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू मूव। जिस दिन आप पूरे 1 साल का कैलेंडर अच्छी तरह से बना पाओगे ना, उस दिन आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मैं श्योरिटी देता हूं कि जिस दिन आप 1 साल का कैलेंडर बना दोगे ना अच्छी तरह से, उस पर चलने लगोगे ना, दूसरे साल से आपको कैलेंडर की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही टाइम के हिसाब से चलोगे, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ डे,
सेकेंड विथ वीक, थर्ड विथ मंथ एंड देन अ ईयरली कैलेंडर। उस हिसाब से अगर चलोगे इट विल बी द बेस्ट। हम लोग एक ऑब्वियस है ऑनलाइन ड्यूरेशन में है, डिजिटल मीडिया के हिसाब से भी चल रहा है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है जो हमें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से दिखाती है, राइट। जहां पर टू डू लिस्ट है, नोट्स है, मोबाइल में नोट्स तो आती है, वो टू डू लिस्ट को आप नोट्स के हिसाब से डाल दो, उस हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दो ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। द रिमाइंडर्स इन आवर मोबाइल फोन, वो रिमाइंडर के हिसाब से स्टार्ट कर दो। हम लोग करते हैं ना बर्थडे रिमाइंडर, तो हमारी लाइफ के लिए भी यही रिमाइंडर्स काम कर लगने वाले हैं, तो वो प्रिपेयर कर दो। अब हमें उस प्लान को इवेल्युएट करना है, पर उसके लिए ट्राई तो करना पड़ेगा। कोई भी प्लान बनाते हो तो उस प्लान के ऊपर चलना पड़ेगा। वो एक्चुअली कैसे चलेंगे, वो टाइम के हिसाब से चलेंगे। मान लो कि मैंने प्लान किया है कि मुझे मास्टर्स करना है, राइट। अब मैं 10th स्टैंडर्ड के दिन 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम है या 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम है, या मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है, तो क्या मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करूं? नहीं। उस वक्त मैं क्या सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या टाइम देना है, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी मेरी एग्जाम्स है उस पर ध्यान देना है। अगर मैं उस हिसाब से काम करूंगा ना तो मेरे दो चीज बहुत अच्छे से हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी जो एग्जाम है उसी का प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब मान लो कि आज मैं जो एग्जाम है उसका भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे को मास्टर्स भी करना है, तो मेरी एनर्जी वो डिवाइड हो जाएगी। एक तो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, उसमें एनर्जी डालनी है। दूसरा, मैं वो सोच रहा हूँ कि मुझे मास्टर्स में क्या करना है, मैं मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या करूँ, तो मेरी एनर्जी वो डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे मेरे टास्क में क्या करना है, अभी जो फिलहाल मुझे करना है वही चीज दैट आई हैव टू डू इज first semester exam. I will prepare those things, and after that, if time spares, if time allows me, will think of the masters. Then what the benefit I will get is that my energy will be on those semesters. If my energy is on that exam, I will get good exams, will give good exams, will get good marks, and that is what the main thing. Up, the main thing is what? जैसे ही I know that I am having the scheduling, I will change my schedule. For the first day, I am preparing my schedule according to what the exam, right? Because from tomorrow I'm having my exam. So what I will do is will read and read and read and read. But after my exam, I will change my schedule again. 2 hours reading, 1 hour free. 2 hours reading, 1 hour free. So just plan, try and evacuate it. जहां पर हमें जितना जरूरत है उस हिसाब से पढ़ाई करो, जितना जरूरत है उस हिसाब से हमारा टाइम जो है वो स्पेयर करना है। एंड दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट टास्क दैट वी हैव टू डू। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, राइट। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग। डू नॉट कीप एनीथिंग फॉर टुमारो बिकॉज वी आर ह्यूमन। We do not know what will happen the next second. Then how can we prepare for tomorrow, right? But what I said is at least prepare. Say for an example, we are there tomorrow, at least we can do that thing. Now what the problem is, we do not plan for tomorrow. Now when tomorrow in the morning when we wake up, we will think that what we have to do is today. We are blank. We have to waste our time, our energy in preparing that day. Instead, what I will do is I will use the whole energy today itself in preparing my whole week, right? Then for the next whole week, I will do is what? Just work according to that schedule, and that is what the fact I am having today. I'm not having any tomorrow. That is my fact. If you are thinking that you are having tomorrow, you are in a mind, you are completely wrong. The only fact that is today. Don't believe in tomorrow. क्यों? क्योंकि कल जब आप जाओगे ना, that means for tomorrow, when you will live tomorrow, that will be your today itself. So the thing is, stop doing such things. Stop assuming that you are having tomorrow. Just prepare your schedule for tomorrow and work for today. That is the best, right? जो आज है वही आज रहने वाला है, वो कल पर नहीं जाना। So one thing, never do today what you can put off till tomorrow, right? Now, अब हमें हमेशा इग्नोर करते बहुत आता है ना, हम ह्यूमंस इग्नोर बहुत अच्छे से करते हैं, और उसमें भी पढ़ाई को, राइट?
स्टडीज को इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मानते हैं हम लोग. द वर्स्ट पार्ट इज दैट थिंग. इग्नोर दोज थिंग्स दैट इज नॉट इन आवर लाइफ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. हम लोग क्या करते हैं, मॉम डैड बोलते हैं बेटा पढ़ लो ना, ये सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम है, ये थर्ड सेमेस्टर. हाँ मम्मी पढ़ता हूँ ना, थोड़ी देर देख तो लेने दो टीवी, 1 घंटे में मैं सिर्फ 2 मिनट टीवी देख रहा हूँ मम्मी, उतना तो देख लेने दो. आज वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है मम्मी, बहुत अच्छा एपिसोड है, मुझे देख लेने दो. अरे भाई तारक मेहता आप यूट्यूब पर 10 दिन हर रोज देख सकते हो सेम एपिसोड को, पर कल सुबह 8 बजे जो आपकी एग्जाम है वो वापस से दे पाओगे नहीं. दैट इज व्हाट द थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन. What we do is we are hoping for tomorrow and we are ignoring today. Don't ignore today, instead ignore your tomorrow. If you start ignoring tomorrow, you will live the best time in your today. So what we have to do is ignore the task that is going on. आपको लगता है कि ये टास्क जो है वो मेरे कुछ काम का नहीं है, या this task can remain for tomorrow, ignore it today. अगर आपको लगता है कि ये कल हो सकता है, अगर मैं नहीं करता मेरी जगह कोई और भी कर सकता है, तो वो टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उसको इग्नोर कर दो. अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द टाइम. डू नॉट टेक पुअर डिसीजन. अगर पुअर डिसीजन लिया तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होता जाएगा, जो आपकी एबिलिटी को डिक्रीज करेगा, आपके परफेक्शन को डिक्रीज करेगा, आपके टाइम के मैनेजमेंट को डिक्रीज करेगा. सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट? परफेक्शन. परफेक्शन है कब है? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट कब है? व्हेन यू थिंक दैट यू आर हैविंग टुडे, व्हेन यू थिंक दैट यू आर प्रिपेयरिंग द होल ईयर कैलेंडर ऑफ योर लाइफ, then and then only you will be doing it. बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इस पूरे साल के कैलेंडर में. आपकी बर्थडे आज से लेकर मतलब नेक्स्ट ईयर, इफ से टुडे इज योर बर्थडे, दैट इज 8, नेक्स्ट ईयर 8 September 2023 your birthday will come, but you will prepare your birthday celebration from today itself. Then why can't we prepare the whole calendar? Why can't we prepare 365 days? That is what our problem. When we think that each and every day is your birthday, we will prepare it, right? So start preparing 365 days from today itself. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज की आज 365 दिन प्रिपेयर कर लो, नहीं. 1 हफ्ते का प्रिपेयर करो, फिर 2 हफ्ते का प्रिपेयर करो, उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. बट जस्ट बिलीव कि जितना आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, खुद के ऊपर बिलीव करते हो, you will be at your best. That time will be at your best. When you believe yourself, just believe your time. हम लोग कहते हैं ना टाइम ही बेकार है, मेरा नसीब नहीं, मेरा टाइम खराब चल रहा है. भाई टाइम खराब नहीं चल रहा है, हमने प्रिपरेशन ही नहीं किया. रिजल्ट खराब आते हैं तो हम 3 चीजों को फॉल्ट में डालते हैं. द फर्स्ट हमारा लक, सेकेंड हमारे टीचर्स, ये टीचर ही बेकार है, अच्छे नहीं पढ़ाते, चेकिंग भी अच्छे नहीं करते, राइट. द थर्ड मेरा टाइम खराब चल रहा है. This 3 is nothing. लक खराब नहीं होता है, टाइम खराब नहीं होता है, टीचर्स खराब नहीं होता है. हमने अच्छे टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं किया था, इसीलिए टाइम खराब चला. टाइम के हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया था, इसीलिए हमें लगता है कि लक खराब है. और टाइम के हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया था, इसीलिए टीचर्स ने गलत मार्क्स दिए, कम मार्क्स दिए, और इसीलिए टीचर्स हमें गलत लगते हैं. When you start preparing according to your time, start preparing according to what you need, teachers will be the best, time will be the best, and your luck will be the best. अगर ये सब कुछ नहीं हुआ ना, टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो आप पैरालिटिक हो जाओगे. टाइम विल ब्रेक यू इन ईच एंड एवरी कंडीशन, क्योंकि टाइम तो अपना काम कर लेगा, हम नहीं कर पाएंगे. सो द बेस्ट थिंग इज वर्क अकॉर्डिंग टू द time, and that will take you to your goals. Right now, the most हमें टाइम वेस्टर्स को टैकल करना है. खाने में आधा घंटा लगा देते हैं, उसमें भी टीवी देखते देखते अगर खाना खाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं पता है? 4 घंटे 2 घंटे. कोई देख लो मूवी में, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मूवी में 3 घंटे की मूवी होती है, 1.5 घंटे के बाद इंटरवल होता है, तो वो 1.5 घंटे खड़े हो जाते हैं क्या? नहीं, वो तो आराम से देखते. कुछ मिस हो गया तो आगे के नंबर्स जो लगते हैं ना मूवी में, एडवर्टाइजमेंट, वो भी हम लोग तो मिस नहीं करेंगे. 3 बजे की मूवी है, हम 2:30 बजे जाकर बैठ जाएंगे. और एग्जाम में
3 बजे की एग्जाम है, 3:05 को 10 मिनट को अंदर एंटर होता है। तो ये सारी चीजें हमें जो टाइम वेस्टर्स है ना उसको टैकल करना है। हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ पर हमें हमारे टाइम को जरूरत है, वहां पर हम टाइम दे रहे हैं कि नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां पर टाइम जा रहा है तो उसको वहां से हटाकर इस टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी डोंट से नो टू एनीवन, बट ट्रस्ट मी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू से नो। दिस नो will give you the success of your life, right? If say for an example, if you are having your exams right now, instead of exam your friend is there somewhere, he needs you, right? But the exam is the last exam of your life. What you will do? You will say no, my friend is very much in need, I will go over there. अरे भाई, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसको ऑपरेशन की, उसको ब्लड की जरूरत है। चलो मान लो ब्लड की जरूरत है, उसके पास कोई ब्लड देने वाला नहीं, आप जा रहे हो, चलो मान लो एग्जाम आपने पोस्टपोन कर ली, 1 साल बिगाड़ लिया, पर उसको कहीं जाना है और आप उसको हेल्प कर रहे हो, से नो। This is the most important part of your life. You have to say no at that time to your friend and you have to give the exam. Right? We can understand that friend is dying, he needs blood. You are only the person in this earth that you can give the blood. Okay, give it. Postpone the exam. So the thing is, we have to say no when you are have to. Right? Just think it and do it. आपको जो चीज लगती है वो चीज करो, वरना मत करो, क्योंकि लोग आपको बोलने वाले डू इट, बट इफ यू फाइंड इट नॉट वर्दी, डोंट डू इट. दैट इज व्हाट वी हैव टू टेकल द टाइम अकॉर्डिंग टू इट. नाउ एज आई सेड, स्टार्ट सेइंग नो, अवॉइड सोशलाइजिंग. हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फैमिली के बिना कुछ नहीं चलता, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना कुछ नहीं चल सकता, बट कभी कभी उनको भी ना कहना पड़ता है. मॉम को कहते हैं ना, ना मम्मी मेरे को नहीं आना मैरिज में, आज घर पर रहूंगा. फिर घर पर क्या करेंगे, आराम से टीवी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, फ्रेंड्स को बुलाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे. अरे भाई, सोशली कभी कभी जरूरत होती है, जहां पर नहीं होती है वहां पर ना बोल दो, जहां पर जरूरी है वहां पर चले भी जाओ, शायद कुछ काम लग जाए. अगर आज मान लेते पढ़ाई के टाइम पर मैं ना बोल देता हूँ कि नहीं मम्मी एग्जाम है कल, मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, इट इज ओके, तब हम अवॉइड करते हैं. बट आज अगर वहां पर जहां मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं वहां पर अराउंड 500 लोग अवेलेबल है, तो मैं पहले जाऊंगा. उससे मेरा भी एक फायदा है ना, लोगों को बता पाऊंगा कि मैं एक स्पीकर हूँ, कहीं पर जरूरत हो स्पीच देनी है, मुझे बुला लो, मैं काम लग जाऊंगा, फ्री में काम कर लूंगा. सो दिस इज वॉट द रियलिटी टू से यस वेर इज इम्पोर्टेंट एंड नो वेर इज इम्पोर्टेंट. आपके डिसीजन यस और नो के ऊपर डिपेंड करते हैं. द रिवाइज एंड प्रीव्यू प्लान, लाइक व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर, कि जहां पर आपको लगता है कि रिव्यू करो वहां पर रिव्यू कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट करती है. एग्जाम में, पेपर में लास्ट 15 मिनट्स बचती है, टीचर्स कहते हैं जस्ट 15 मिनट्स आर लेफ्ट, स्टार्ट रिव्यूइंग, स्टार्ट रिवाइजिंग. अगर लगता है कि जरूरत है तो जल्दी से पेपर को रिव्यू कर लो, कुछ गलत है तो कर लो, राइट? और एग्जाम से पहले टीचर्स कहते हैं ना रिवाइज भी तो कर लो, कुछ जरूरी होती है. सो इन द लाइफ एज वेल, time is that important part that needs revise and review policy as well. If we know that what time actually is, start preparing. When you have prepared with your time, with your scheduling, start reviewing and revising it. Review that what you are doing throughout the day, throughout the week. Revise according to what the situation is. If I have prepared for Monday, according to Monday, if I have an appointment over there tomorrow, what I will do is I have to revise it, right? On Monday, if I'm having some appointment, if that gets cancelled, my 3 hours will get wasted. So what I will do is will revise my Monday's calendar, right? So that my 3 hours will not get wasted. So just revise and review your time so that you will be at your best. So this was done. The most important part to prepare for your life is time management, right? And that is what the reason I told earlier, the management, the engineering of life, that is what the time. अगर हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, शेड्यूल करो गोल के हिसाब से,
प्रिपेयर करो गोल के हिसाब से. इफ इट इज ऑल डन यू विल बी एट योर बेस्ट. लाइफ में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा. और मैंने पहले भी कहा था 4:30 बजे अगर आप उठ जाते हो, खुद को और आपकी फैमिली को अगर आप टाइम दोगे, it is my surety, my promise to you all, you will be able to live the best life among all. Thank you so much. Hello, Unnati ma'am. Yes, sir. Thank you so done. much, sir. Thank you, ma'am. We have just some questions. Sure. Stress. Yes, ma'am. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I, Shreyas Jaiswal, student of 5th semester Electrical Engineering, Parul Polytechnic Institute. Okay. Sir, I question from our side. First question is how to use time management diploma engineering in exam. Okay. See, if you are in diploma, the studies is very much important, right? According to the engineering. So as I told you earlier as well, that prepare your goal first. If your goal is just to be the diploma engineer, work according to it. If your goal is to go for the bachelor's, for the master's, start preparing right now itself. If you are spending your time 3 hours a day in your diploma studies, and if you want to be the bachelor's as well, instead of 3 hours, start working for 5 hours from now. Because we all know, say for an example, diploma is this much, degree is this much. So it is obvious, if you are working for 3 hours in diploma, you need 5 hours for bachelor's. So if you go in bachelor's and start working for 5 hours, you will think this 2 hours, instead of 3 hours, 2 hours you will waste it. But if you start preparing right now for 5 hours in your bachelor's, it will be beneficial for you. So the main important is prepare your goal and fractionate your time according to it. And again, I'm saying only one thing. अगर आपको सही में अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, सुबह 4:30 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, खुद को टाइम देना शुरू कर दो, पूरे दिन में आप क्या करने वाले हो वो प्रिपेयर कर लो, आप अपने टाइम में सबसे बेस्ट रहोगे. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, my second question is how to help time management in an interview. Yeah, interview. Now, whenever we are facing an interview, the time is most important because we don't know how much time that interviewer will take. Some people will take only 2 minutes, some will take only 5 minutes, and that is what is important. So what you have to do is just listen to the question very carefully. If you know that this question will take only 2 seconds to answer, give it. Don't expand those things. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन सुनोगे उसके जो आप आंसर दोगे ना, उसके ऊपर से ही इंटरव्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको 5 मिनट के लिए बिठाए या 15 मिनट के लिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, 15 मिनट के लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, बट द प्रॉब्लम इज आपके आंसर्स अगर सही तरीके से नहीं होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. तो व्हाट यू विल थिंक इज यार मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गए. नहीं, you have not wasted that 15 minutes. You have learned something from that 15 minutes, that from next interview you will not speak unnecessary things. Okay, sir. Sir, my next question is how do students manage exam time? Okay, exam times are according to what the theoretical and practical subjects, right? When you know that this is what the theory subject is, so what you can do is you can decrease your study time in theory, you can increase your time in practical. Say for an example, in diploma you will be having maths 1, maths 2 or something, right? So in maths 1, maths 2 and all, you will be having tough time. So what you can do is start giving more time to the practical subjects and somewhat less time in the theoretical subject. Now what the problem is, when we give the exam, what we people do is cramping. हम लोग रट्टा मारते हैं, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं. बट ट्रस्ट मी, जो बंदा जिस दिन को जो टॉपिक पढ़ाया है कॉलेज के अंदर, उसी टॉपिक को जैसे ही टीचर्स चले जाते हैं, क्योंकि लेक्चर्स चेंज होते हैं ना. इवन आई हैव स्टडीड इन पारुल यूनिवर्सिटी, सो आई नो, इवन आई एम द टीचर राइट नाउ इन सम ऑफ द स्कूल्स एज वेल. तो मुझे पता है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में जब चेंज होते हैं ना, तब एटलीस्ट हमें 5 मिनट मिल जाती है.
राइट। तो जो टीचर ने आज हमें ये लेक्चर में पढ़ाया है ना, वो 5 मिनट में एक बार तो आप रिवाइज कर दो। मतलब आपने रिवाइज ऑलरेडी कर लिया, उसको घर पर जाकर फ्रेश होने के बाद 2 बार रिवाइज कर लो। मैं श्योरिटी देता हूँ एग्जाम के टाइम पर सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। पर हम लोग क्या करते हैं, इवन मैंने भी वही किया था। मैंने कभी मेरे टीचर्स की सारी बातें नहीं सुनी थी। मुझे मनीष सर, मैंने अभी भी बताया, मनीष सर ने एक बार बहुत डांटा था कि जयमिन तू रट्टा मार के आता है फिर भूल जाता है। वाइवा चल रहा था, एक्सटर्नल वाइवा, उसमें वो भी बैठे थे। तो मैंने उनको यही कहा था, सर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तब उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि बेटा एक काम करना, यहाँ पर जो भी चीज सिखाते हैं ना, उसको घर पर जाकर सिर्फ 2 बार पढ़ लो। यही चीज मैं आज आपको रिपीट करता हूँ। जैसे टीचर क्लास के बाहर जाते हैं, उसको रिवाइज कर लो, घर पर जाकर 2 बार पढ़ लो, यू विल बी एट योर बेस्ट। Okay, thank you, sir. Sir, my last question is, how does time management reduce stress? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को जब टाइम मैनेज करना सीखते हैं, 2 दिन 3 दिन कैलेंडर्स बनाते हैं ना, तो उस वक्त बहुत प्रेशर लगता है, घाई लगती है कि यार 1 घंटे में मुझे इतना खत्म करना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें आराम से कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है। पर 4 या 5 दिन के बाद जब वही कंफर्ट जोन की आदत हम लोग 1-1 घंटे के हिसाब से, मतलब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से शेड्यूलिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो 5 दिन के बाद हमें टाइम के हिसाब से चलने की आदत पड़ जाती है। और जो बंदा टाइम के हिसाब से चलता है ना, उसको कभी भी प्रेशर नहीं रहता। हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं। तो क्या डॉक्टर प्रेशर में होता है कि यार 1 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन है, मैं प्रेशर कैसे ऑपरेशन करूंगा, हाथ ध्रुजने लगेंगे, क्या करूंगा? नहीं, वो इसीलिए प्लान्ड ऑपरेशन है ताकि डॉक्टर जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहता है। राइट, तो वो स्ट्रेस में नहीं होंगे। अगर बिना मैनेजमेंट, बिना प्लान के सर्जरी करेंगे तो वो खुद स्ट्रेस में होंगे कि यार अभी इसकी ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा आ गया, उसका ऑपरेशन कैसे करूंगा? तो आधा ऑपरेशन इधर करेंगे, आधा ऑपरेशन उधर, नहीं, तो वो प्रेशर ज्यादा होता है। पर जो डॉक्टर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, प्लान के हिसाब से अपनी सर्जरीज करते हैं ना, वो सक्सेसफुल सर्जरीज भी अच्छी होती है और वो स्ट्रेसलेस सर्जरीज होती है। तो एग्जाम्स में भी ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारा स्ट्रेस बहुत कम कर देता है। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, Shreyash, and thank you, Jaimin Shah, sir. I give my word of thanks from Parul Polytechnic Institute. Sir, my heartfelt thanks to you to explain about where to start, set goals, what is important, revisit of the values using time management. So lots of things we learned today from your session. And on behalf of Parul Polytechnic Institute, I would like to thank Dr. Jatin Vaidya, Principal Sir, and Head of Department, Komal Panchalnan, and all faculty and all participants who are attending this webinar. So thank you so much, sir, and we will also connected with you for learning about time management. Thank you so much, sir, your valuable time. थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।